Welcome to School Leadership Academy SCRT J&K. Today we will talk on role of school system and pedagogical leaders in improving the learning and learning outcomes in mathematics in schools of J&K. Today we have with us our colleague Gulzar Saab. He is heading the mathematics in the Kashmir division. He will talk on the global context, the national context, what NEP will talks about mathematics education. He will take us to mathematics challenges and remedies, and more importantly, what is the role of school system and pedagogical leader. Welcome you, sir. Thank you very much, Dr. Saab. I'm highly humbled. You invited me in this program. It's a very great pleasure for me. Thank you, sir. Thank you. Because we need a good mathematicians. Because engineering, technology, architect, industry, banking sector is incomplete without mathematics. Am I right, sir? Of course, of course. Sir, I want to listen from you as an expert. What is the importance of mathematics, especially the global context? As you just said, that mathematics is a very important discipline. I think in past as well as in future and in present, it has a huge amount of importance. Landing on moon was possible only because of mathematics. Otherwise, it was dead impossible for a man to land on moon. And as per new, or you can say the future strategies are concerned, future policies are concerned, or you can say man is advancing in each and every sphere of life. But the possible achievements are possible only when we use mathematical techniques, mathematical reasoning in achieving these goals and achieving these heights. Especially, sir, starting from Archimedean principle, Newton's laws, Aryabhat principles, Brahmagupta, even in Ramanujan's. More important, sir, I want to hear from, because Ramanujan's contribution is close to my heart and will be definitely close to the heart of all the Indians. I want to listen from you about the Ramanujan's contribution to mathematics. Ramanujan was a very great mathematician from South India. Ramanujan का बहुत ही जिसे हम कहेंगे ना, बहुत ही एक लगाव था, बहुत ही रेस्पेक्ट था, बहुत ही इंटरेस्ट था नंबर सिस्टम में. वो नंबर्स के साथ खेलता था, वो नंबर्स के साथ सोता था, उठता था, बैठता था. He was eating numbers, he was playing with numbers. उनको इतना लगाव था, उतना प्यार था नंबर्स के साथ. एक दिन वो हार्डी के पास गए. हार्डी वाज अ मैथमेटिशियन. उनको वो बीमार थे और उनके पास चले गए और बाहर हार्डी देख रहे थे गाड़ी के नंबर की तरफ. उनकी गाड़ी का जो नंबर था वो नंबर था और वो सोच रहा था वो नंबर जो है शायद अच्छा नंबर नहीं है मेरे लिए. लेकिन रामानुजन ने उनसे कहा, अरे हार्डी भाई आप क्या देख रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं नंबर की तरफ, गाड़ी के नंबर की तरफ देख रहा हूँ, ये अच्छा नंबर नहीं है. कहा कि अरे क्या बात है, ये तो ऐसा नंबर है विच कैन बी रिटन इन एज अ सम ऑफ 2 क्यूब्स और 3 क्यूब्स इन 3 डिफरेंट वेज. तो इतना इंटरेस्ट था उसको नंबर सिस्टम में या नंबर्स में. उन्होंने बिल्कुल विद नो टाइम ये निकाला कि हम इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं. इवन इफ वी टॉक ऑफ शकुंतला देवी was a great Indian mathematician. she said that everything around us is numbers. Of course. So everything around us is mathematics. Of course. सर आप देखिए ना, आपकी इस बात को मैं ऐड करना चाहूँगा. आप एक इंसान की तरफ अगर आप देखेंगे, उनसे वाबस्ता कितने नंबर्स हैं. उनका फ़ोन नंबर, उनके बेल्ट का नंबर, उनके गाड़ी का नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनका चश्मे का नंबर, बैंक अकाउंट नंबर. इतने नंबर्स एक इंसान के साथ जुड़े हैं, लातेदार नंबर जुड़े हुए हैं. सर इसमें मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर ऑल ऑफ अस who are working for the improving teaching learning process across India. Sir, इसमें I want to hear from you what national education policy talks about mathematics.
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है मैथमेटिक्स एजुकेशन पे, और ख़ासकर जो फाउंडेशनल न्यूमरेसी या फाउंडेशनल लिटरेसी है उस पे जोर दिया है। और ये बुनियाद माना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कि अगर मैथमेटिक्स की जो न्यूमरेसी के उसूल हैं वो हमारे बच्चों में आ जाते हैं तो वो आगे चलकर उनमें वो जो स्किल्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा बाकी स्किल्स भी वो अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कहता है इनकॉर्पोरेट द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, यानी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को हमें इनकॉर्पोरेट करना है। इसके बाद जो है प्रमोटिंग इंडिसिप्लिनरी अप्रोच या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को हम मैथमेटिक्स में जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जोर दिया है। इसके अलावा एनकरेजिंग हैंड्स ऑन द एक्सपीरियंस्ड लर्निंग भी एम्फेसिस किया है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा इम्प्रूव टीचर एजुकेशन जिसे हम कहेंगे ना, टीचर्स को कैसे ट्रेंड किया जाएगा या टीचर्स को किस लेवल पे टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की भी बात करता हूं। और फाइनली स्ट्रेंथनिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग मैथमेटिक्स। यस यस, दैट्स ये जोर दिया है, टेक्नोलॉजी हैज टू बी टुगेदर। यस यस, ये जोर दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने मैथमेटिक्स टीचिंग के हवाले से। और सबसे ज्यादा जोर जो दिया है वो है फाउंडेशनल न्यूमरेसी या फाउंडेशनल लिटरेसी की तरफ। तो जिसको हम हमारे पास एक बड़ा डॉक्यूमेंट है निपुण भारत के नाम से, FLN के नाम से। सर इसमें मैं चाहता हूँ इन केस ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस, बिकॉज देयर आर ह्यूज लर्निंग क्राइसिस स्पेशली इन द मैथमेटिक्स। यस सर, उस पे आप थोड़ा सा मुझे सही से आपने निपुण की बात की। अगर हम वर्ल्ड बैंक पोवर्टी लिटरेसी रिपोर्ट की तरफ देखेंगे ना, वर्ल्ड बैंक पोवर्टी लिटरेसी इंडेक्स के मुताबिक पूरे इंडिया में तकरीबन 55% बच्चे जो 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं वो दे आर नॉट एबल टू रीड देयर टेक्स्ट बुक्स, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म द बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, स्पेशली जो सब्ट्रैक्शन की बात, हाँ, क्लास 5th स्टूडेंट्स इज अनएबल टू डू सब्ट्रैक्शन। यस, सो देयर इज अ लर्निंग क्राइसिस। हाँ, लर्निंग क्राइसिस। इसीलिए जब 5th स्टैंडर्ड के बच्चे बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए निपुण भारत लॉन्च किया गया है, NIPUN, निपुण। That means National Initiative in Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy। यानी हम एक ऐसी स्कीम जो लॉन्च की गई है जो फाउंडेशनल लिटरेसी या फाउंडेशनल न्यूमरेसी को जो है बच्चे जो है उसमें वो ज़्यादा एक्सेल कर पाए। यानी इस निपुण के तहत जो टारगेट है 2026 या 27 तक हर कोई बच्चा जो 3rd स्टैंडर्ड तक आ जाए उसको कम से कम अपनी टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट है वो पढ़ पाएं, और बेसिक ऑपरेशंस हैं जैसे कि सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, वो पढ़ पाएं। ठीक है, तो अगर हम नेस रिपोर्ट की भी बात करेंगे या सेस रिपोर्ट की भी बात करेंगे, सर, वो क्रूशियल है हमारे जेएंड के कंटेक्स्ट में। सर नेस फाइंडिंग्स फॉर जेएंड के, सर वो थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। वहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, वहाँ पे जो पैरामीटर्स रखे गए हैं 1 से लेके 9 तक कौन बच्चा आइडेंटिफाई नंबर्स कर पाता है, या 10 से लेके 99 कौन आइडेंटिफाई कर पाता है, या 3rd तक हमारा बच्चा जो है 9999 जो है वो लिख पाता है या रिकग्नाइज कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो अगर हम देखेंगे ना उसमें हम नेशनल स्टैंडर्ड से उतना पीछे नहीं है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। हम कहाँ पीछे हैं? हम पीछे हैं अगर हम वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। जब आप मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक की बात करेंगे ना, वहाँ पे होते हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लाइक द एज ऑफ सन इज 5 टाइम्स द एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स द एज ऑफ सन। ऐसी प्रॉब्लम्स जो है ना, वहाँ पे हम थोड़ा सा वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारे बच्चे पीछे हैं। इनफैक्ट मैं एग्जैक्ट फिगर आपको बताऊं, हम तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर से हैं फ्रॉम द बॉटम। From the bottom we are on number 2। इसमें एक अहम चीज़ जो NAS 2017 की फाइंडिंग्स हैं फॉर जेएंड के, क्लास 3rd के बच्चे 62% बच्चे have responded to mathematics। Yes। But when we move to the class 5th, the number is 54। When we move to the class 8th, the number is 37। हाँ, यहाँ पे एक बात हमें जहन में रखनी है जो इन सर्वेज में किया जाता है। एक होता है रिकग्नाइज करना नंबर,
रिकॉग्नाइज एक कंपोनेंट है, दूसरा होता है उन नंबर्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना। ठीक है, तो ये आपने सही बात कही कि 62% जो है वो रेस्पॉन्ड करते हैं किसी मैथमेटिकल क्वेश्चन को। सर अब ये हमारे पास चैलेंजेस हैं, वी एग्री दैट ग्लोबल लेवल पे even we have not produced, JNK has not produced good mathematicians. Of course, agree. Even though we believe that present day machine learning, artificial intelligence, everything is backed by the mathematics, Yes, basic of principles course, of mathematics. of course. Sir, what are these are the challenges? Why it is there? What are the key challenges for our school leaders, for our system leaders, for pedagogical leaders to deal with these challenges so that mathematics can become a fun, joyful? आपने एक बहुत अच्छे सवाल की तरफ इशारा किया, बहुत अच्छी बात की तरफ इशारा किया। पहले जो हमारे स्कूल लीडर्स हैं या सिस्टम लीडर्स हैं या जितने भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में लीडरशिप जो है ना, उनको ये जहन में रखना है, उनको ये पता होना चाहिए, ये जहन में होना चाहिए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। दैट्स द फर्स्ट पार्ट। हाँ, जब लीडर्स के दिमाग में यह आ जाएगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, जैसे मैंने पहले इब्तिदा में कहा कि चांद पे कदम रखना पॉसिबल हुआ तब जब जो मेन जो है वो जीरो जानता था, मैथमेटिक्स जानता था। आज फाउंडेड बाय इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। और इसके अलावा आजकल जो आप देख रहे हैं ना, आजकल जितने भी मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या कंप्यूटर नॉलेज ने इतना एडवांस हुआ है, वो मैथमेटिक्स से पॉसिबल हुआ है। इवन आजकल जो आप क्रिकेट में जो या स्पोर्ट्स में जो टेक्निक्स यूज होती है, वो जो रिव्यू लेते हैं, या अगर आप देखेंगे ना, रिव्यू लेने के बाद जब वो ग्राफ वो बॉल का देते हैं, वो LBW हो गया है या नहीं हो गया, आउट हो गया है नहीं हो गया, दिस इज ऑल मैथमेटिकल ग्राफ्स। ये पॉसिबल हुआ जब हमें पता है कि मैथमेटिकल ग्राफ्स कैसे काम करते हैं, मैथमेटिकल ग्राफ्स की जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे हैं। ठीक है, तो ये इवन एक कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। जब एक क्रिकेट प्लेयर को हम सिलेक्ट करते हैं, एक क्रिकेट प्लेयर ऐसा होता है जो 3 मैचेस में सेंचुरी बनाता है, फिर 10 मैचेस में 10, 5, 4 रन बनाता है। दूसरा क्रिकेट प्लेयर ऐसा होता है जो कंसिस्टेंटली, मैं कंसिस्टेंटली वर्ड अभी यूज नहीं करूंगा, जो 60 बनाता है, 70 बनाता है, 50 बनाता है, 40 बनाता है। और फिर मैथमेटिकल टूल्स कुछ ऐसे यूज किए जाते हैं जिससे हम देखते हैं कि कंसिस्टेंट प्लेयर कौन सा है, किस प्लेयर को हम कहते हैं। हाँ, यस, एवरेज एक मीन है। हाँ, वो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, मैथमेटिकल टूल्स हैं जिससे हम कंसिस्टेंसी निकाल पाएंगे, जिससे हम सिलेक्शन जो हमारी है, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री के जरिए आप इजीली बता सकते हैं ईफिल टावर की हाइट क्या है विदाउट मेजरिंग, एक्चुअली मेजरिंग इट। आप बुर्ज खलीफा की हाइट बता सकते हैं विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। सर ये आप हाँ, हम बात कर रहे थे ना, स्कूल लीडर्स को अगर ये इंपॉर्टेंस पता चलती है तो तभी वो मैथमेटिक्स की जो एजुकेशन है उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे स्कूल लीडर्स के लिए कुछ चैलेंजेस हैं, लाइक वी हैव सर मैथमेटिक्स फोबिया अक्रॉस, आई कैन से J&K, across, especially in the North India, we have a mathematics phobia, especially in case of girls. सही Sir, now this is the one problem. Sir, I want as expert, give us the best remedy for removing this mathematics phobia among the students and teachers. आपने सही कहा कि चैलेंजेस है स्कूल लीडर्स के पास। पहले जैसे मैंने अभी आपको कहा कि इम्पोर्टेंस समझनी है, दूसरा ये है कि मैथमेटिक्स फोबिया है बच्चों में, इवन टीचर्स में भी। इवन सर, तो स्कूल लीडर्स में भी मैथमेटिक्स फोबिया है। जब वो इम्पोर्टेंस समझेंगे, और हमें स्कूल लीडर्स का एक बहुत बड़ा रोल बनता है मैथमेटिक्स एजुकेशन को आम करने में, या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को जो है पॉपुलराइज करने में। लाइक अगर हम पहले चैलेंजेस देखेंगे, चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो जो उनकी पेडागोजी है, दे डोंट जनरली बॉदर टू यूज द टेक्नोलॉजी, yes, technology in their teaching classes,
ये भी यहाँ पे भी एक रोल बनता है स्कूल लीडर्स का कि हमारे जो टीचर्स हैं उनको कम से कम, अगर आप देखेंगे ना, हर स्कूल में मैथमेटिक्स किट अवेलेबल है। Yes, yes, कम से कम स्कूल लीडर्स का ये रोल बनता है कि हमारे मैथमेटिक्स टीचर्स वो स्कूल मैथमेटिक्स किट यूज करते हैं कि नहीं करते नहीं हैं। करते। They will make them उनको accountable. मोटिवेट मोटिवेट करना है कि वो मैथमेटिक्स किट यूज करें, या फिर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं मैथमेटिक्स टीचिंग में जिनको हम यूज करके उस टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते सर हैं। इवन सर एप्स, कुछ एप्स, या ऑफ कोर्स मैथमेटिकल गैजेट्स के अलावा कुछ एप्स हैं, लाइक जियोजेब्रा है, लाइक हम ज्योमेट्री पढ़ाते हैं या अलजेब्रा पढ़ाते हैं, इन जियो और अलजेब्रा को कंबाइन करके एक ऐप बनी है, बल्कि जिसे हम कहेंगे एक सॉफ्टवेयर बना है जिसे हम जियोजेब्रा कहते हैं। जियोजेब्रा की मदद से हम बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं या बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम कंक्रीटाइज कर सकते हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। यस, मैथमेटिक्स टीचिंग रादर। ये भी एक रोल है हमारे स्कूल लीडर्स का। मैथमेटिक्स टीचर्स को कम से कम वो इस काबिल बनाएं या उनको मोटिवेट करें कि ये चीज़ें, इसके अलावा जियोजेब्रा के अलावा फैट भी है, PHET फैट भी एप्लीकेशंस हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी स्कूल लीडर्स या जो सर डेटा पे, लाइक वी आर यूजिंग इन आवर ऑफिस डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइक SPSS, वी यूज टू एनालाइज द डेटा। यस, एनालाइज करना डेटा। डेटा एनालिसिस पॉसिबल हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स। हाँ, मैथमेटिकल टूल्स पॉसिबल कर पाते हैं जो डेटा एनालिसिस। इवन सर जो बेसिकली जब हम मैथ पढ़ रहे थे तो 3D चीज को हम 2D में समझा रहे थे। दैट्स व्हाई वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द स्फीयर और सिलेंडर। हाँ, जब हम सर उसके लिए मतलब हमारे जो स्कूल लीडर्स हैं, हाउ दे शुड डायरेक्ट their teachers, how they can incorporate this technology, as well as more importantly जो हमारा एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस बना है रिगार्डिंग मैथमेटिक्स, तो उसको कैसे दूर करेंगे? उस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को जो बच्चों में है, बच्चे मैट्रिक तक मैथ अच्छे से पढ़ पाते हैं, 100% मार्क्स लाते हैं, समझ भी आता है, लेकिन उसके बाद एक नेगेटिव परसेप्शन बना है, वो नहीं लेते मैथ। सर उसके लिए व्हाट आर द पॉसिबल मेजर्स? हाँ, अभी मैंने जैसे कहा कि जो टेक्नोलॉजी है, अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे ना टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में, तो ये बोरिंग नहीं रहेगा, ये इंटरेस्टिंग बनेगा, ये अट्रैक्टिव बनेगा बच्चों के लिए भी। और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो इनको फॉरेन लगते हैं, ये जो लगते हैं ये हमारे बस की बात नहीं है। हम एरिया की बात करते हैं, हम किसी वॉल्यूम की बात करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली अगर हम बच्चे से करवाएंगे ना, अगर हम एरिया पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकली स्कूल लीडर अगर अपने सहन का या अपने लॉन का एरिया बच्चों से निकलवाएं तो एक प्रैक्टिकल भी होगा, ऑटोमेटिकली एक रोल बनता है स्कूल लीडर्स का ऐसे मैथमेटिक्स फोबिया को दूर करने में। Sir, that's the first challenge which we face across. Second challenge is sir, जो हमारे teachers में pedagogical skill of teaching mathematics, they are not innovating. Yes, of in course. teaching mathematics. Agreed. हमारे पास बहुत सारे। उसके लिए क्या किया जाए? How we bring innovations in teaching and learning of mathematics? मैं ये जनरलाइज नहीं करूँगा, हमारे पास बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अपनी पेडागोजी को इम्प्रूव करते हैं वक्त बढ़ने के साथ साथ, या वो देखते हैं यूट्यूब यूज़ करते हैं, या बाकी टीचर्स या इंटरनेशनल या नेशनल लेवल ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, वो समझ पाते हैं। या दीक्षा पोर्टल है हमारे पास, वहाँ पे जाके वहाँ पे नए मॉड्यूल्स देखते हैं, वहाँ पे अपनी जो नॉलेज है या अपनी टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स को ऑगमेंट करते हैं। लेकिन ज़रूरत है सारे टीचर्स ऐसा करें। बहुत सारे गुड नंबर ऑफ टीचर्स ऐसे हैं जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो हैं ऐसा कर पाते हैं। We should learn from each other, collaborative learning, peer learning, and we should give. And sir, more importantly, sir, जो नेगेटिव परसेप्शन की हम बात कर रहे थे, उसमें स्कूल लीडर की क्या जिम्मेदारी है? स्कूल, जैसा कि मैंने अभी कहा, स्कूल लीडर्स गाइडेंस एंड हाँ, स्कूल लीडर्स की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे ना, पहले जो हम पेंट करते हैं स्कूल, पेंटिंग करते हैं या वॉल्स को पेंट करते हैं, हम शेर भी लिखते हैं,
हम हाँ, कोई उर्दू हम couplets। कोई कॉल भी लिखते हैं। इसके साथ साथ हम अगर मैथमेटिकल एक्टिविटी भी उस पर पेंट Yes, करेंगे, yes, that's वो भी एक अच्छा अट्रैक्टिव बनेगा बच्चों के लिए। दूसरी बात ये है कि एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल जो होती है ना, हाँ, हर स्कूल में established है as ठीक per है? the national तो education policy। वो होनी चाहिए वेल इक्विप्ड विद द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, या उनको पता होना चाहिए एवेन्यूज क्या है, जॉब एवेन्यूज Career क्या है, options and- कैरियर ऑप्शंस क्या है मैथमेटिक्स में, वो बच्चों को मोटिवेट करें इसके लिए। Sir, thanks a lot. At the end, I humbly request all my school leaders to make mathematics teaching and learning a fun activity for all the students, using innovative pedagogies, even gaming, puzzles, etc. But more importantly, provide a conducive atmosphere for teaching and learning mathematics in schools of India.